تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، میرے پورے سال کی محنت اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کا تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لاؤنج کی خاموشی میں جلال شاہ کی وہ بھاری اور غصے سے بھری آواز گونجی۔ وہ خاندان کا سب سے بڑا اور قابل بیٹا ضرور تھا، لیکن اس کے سنجیدہ روبدار مزاج کے پیچھے ایک بے حد ملکیت پسند اور ضدی انسان چھپا تھا۔ وہ اپنی انہیں پسندیدہ چیزوں کو کسی قیمت پر ہارنا نہیں جانتا تھا۔ اپنی شاندار شخصیت، گہری سیاہ آنکھیں اور پرسرار خاموشی کی وجہ سے پورے گھر میں اس کا ایک روب تھا۔ بظاہر وہ بہت اصول پسند تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ پرسکون خاموشی دراصل اس کے اندر چلنے والے کسی گہرے طوفان اور شدید جذباتی پن کا پردہ ہے۔ اس کے بالکل سامنے ماہی کھڑی تھی۔ ماہی اس گھر کی رونق اور سب کی لاڈلی تھی۔ اپنی بڑی بڑی بولتی آنکھوں اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی، لیکن اس وقت وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے اجلال کی انتہائی اہم کاروباری فائل کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، شاید صفائی کے دوران کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہو۔ ماہی نے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی پیش کی، لیکن اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تمہاری اس غیر ذمہ داری اور لاپرواہی نے آج مجھے اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ تم زندگی میں کبھی کوئی کام سنجیدگی سے نہیں کر سکتی ماہی۔ تمہارے لیے ہر چیز صرف ایک مذاق ہے۔ اجلال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظروں میں موجود خفگی نے ماہی کے دل کو بری طرح سے دکھ دیا۔ گھر کے سب بڑے وہاں موجود تھے۔ دادا جان نے بیچ میں بڑھ کر بات ختم کروانے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں اجلال، بیٹا بچی ہے، غلطی ہو گئی، تم کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ مل جائے گی فائل۔ دادا جان، آپ سب کے اسی لاڈ پیار نے سے بگاڑ دیا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اجلال نے ایک آخری نظر ماہی پر ڈالی، جس کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے مڑا اور گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ماہی نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور کسی کی بھی بات سنے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ پورے خاندان کے سامنے اس طرح کھلی بے عزتی اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور سیما اندر داخل ہوئی۔ سیما ماہی کی کزن اور اس کی سب سے گہری رازدار تھی۔ وہ مزاج میں ماہی سے بالکل الٹ، قدرے ڈرپوک اور خاموش طبع لڑکی تھی۔ اسے آگے بڑھ کر ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس کر دے ماہی، اتنا مت رو۔ بھائی کو غصہ آ گیا تھا، تجھے تو پتا ہے وہ کام کے معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ سیما نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ماہی نے یکدم سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، لیکن اب ان میں آنسو کی جگہ شدید غصہ تھا۔ سخت ہے تو اپنے آفس میں ہوں گے۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے اتنی بری طرح ڈانٹا ہے، میں نے معافی بھی مانگی، پھر بھی ان کا غرور کم نہیں ہوا۔ ماہی نے دان پیستے ہوئے جواب دیا، میں اس اجلال شاہ کو چھوڑوں گی نہیں۔ سیما، اس نے میری بے عزتی کی ہے نا، اب میں اسے بتاؤں گی کہ ماہی کیا چیز ہے۔ سیما گھبرا گئی۔ تو کیا کرنے لگی ہے؟ دیکھ ماہی، کوئی نیا ہنگامہ مت کرنا، پہلے ہی گھر کا ماحول خراب ہے۔ ماہی بیڈ سے اٹھی اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اس کا دماغ تیزی سے بدلہ لینے کا کوئی منصوبہ سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کے قدم رکے اور چہرے پر ایک شرارتی اور خطرناک سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ سیما، اجلال بھائی ہمیشہ اپنے لیپ ٹاپ اور اس پرسنل USB کو جان سے زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ مجھے یقین ہے اس میں ضرور ان کا کوئی ایسا راز ہوگا، کوئی ایسی فائلز یا کسی گرل فرینڈ کی تصویریں ہوں گی جنہیں چھپا کر وہ اتنے پارٹس بنتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے اس کا؟ سیما نے پریشانی سے پوچھا۔ ہم آج رات ان کے کمرے میں جائیں گے اور وہ USB چرائیں گے۔ جب ان کا وہ کچا چٹا میرے ساتھ میں آئے گا نا، تب میں بلیک میل کروں گی اور وہ سب کے سامنے مجھ سے معافی بھی مانگیں گے۔ ماہی نے پورے اعتماد سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ سیما نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ماہی، اگر ہم پکڑے گئے نا تو دادا جان بھی ہمیں نہیں بچا پائیں گے، بھائی ہمیں کچے چبا جائیں گے۔ میں اس پاگل پن میں تیرا ساتھ نہیں دینے والی۔ تجھے میری قسم ہے سینا، تو جانتی ہے نا تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تو نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ ماہی نے اپنی سب سے بڑی اور کارگر دھمکی استعمال کی۔
सीमा कुछ देर हिचकिचाई, लेकिन माही की जिद और जज्बाती बातों के आगे आखिरकार उसे हथियार डालने ही पड़े। रात का पिछला पहर था। पूरे घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग गहरी नींद सो चुके थे। माही ने अपने कमरे का दरवाज़ा इंतहाई एहतियात से खोला और बाहर झांका। कॉरिडोर में हल्की सी जीरो बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। उसे सीमा को इशारा किया और दोनों दबे कदमों चोरों की तरह कॉरिडोर अबूर करने लगी। सीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बार बार पीछे मुड़कर दिख रही थी। माही पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ रही थी। उन्हें मालूम था कि अजलाल रात के वक्त अक्सर अपने स्टडी रूम में होता है और उसका बेडरूम खाली होता है। अजलाल के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। माही ने हल्का सा धक्का दिया तो वो अंदर को खुल गया और वो दाखिल हो गई। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आने वाली चांदनी ने कमरे की चीज़ों को वाज़िया कर रखा था। जल्दी कर माही, मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा है। भाई किसी भी वक्त आ सकते हैं। सीमा ने दरवाजे के पास खड़े होकर कांपती हुई आवाज़ में सरगोशी की। तू बस ना बाहर नजर आ, मैं अभी निकालती हूँ। माही ने सरगोशी में जवाब दिया और तेज़ी से साइड टेबल की तरफ पड़ी। वहाँ अजलाल का लैपटॉप रखा था और उसके साथ एक छोटी सी स्याह रंग की यूएसबी पड़ी थी। माही के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप की स्क्रीन खोली। लैपटॉप स्लीप मोड पर था। स्क्रीन फौरन रोशन हो गई। उसने जल्दी से यूएसबी उसके साथ लगाई। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। माही को लग रहा था जैसे ही वो फोल्डर खोलेगी सामने जलाल के किसी बड़े राज से पर्दा उठ जाएगा। उसने माउस पैड उंगलियां फेरी और यूएसबी का मेन फोल्डर ओपन किया। फोल्डर खुलते ही स्क्रीन पर बहुत सी फाइल्स और तस्वीरों के फोल्डर सामने आ गए। माही ने बेताबी से तस्वीरों वाला फोल्डर क्लिक किया। जैसे ही तस्वीरें स्क्रीन पर जाहिर होने लगी, माही की सांसें एक पल के लिए जैसे रुक सी गई। वहाँ किसी लड़की की तस्वीरें या कोई राज नहीं था, बल्कि उजलाल की अपनी तस्वीरें थी। कुछ तस्वीरें किसी प्रोफेशनल फोटोशूट की लग रही थी और कुछ किसी गैर मुल्की दौरे की थी। माही की नजरें स्क्रीन पर जम गई। ब्लैक थ्री पीस सूट में जलाल की वो तस्वीर इतनी पुरकशिश थी कि माही अपना सारा गुस्सा, बदले की आग और आसपास का माहौल सब कुछ भूल गई। जलाल की गहरी आंखें, बिखरे हुए बाल और वो संजीदा मुस्कुराहट, सब कुछ इतना मशहूर कन था कि माही बल्कि चिपकाना ही भूल गई। क्या मिला माही, जल्दी कर यार, सीमा ने पीछे से बेचैनी से पूछा और चलकर माही के पास आ गई। सीमा ने जब स्क्रीन पर जलाल की तस्वीरें देखी तो वो भी हैरान रह गई। यार सीमा, माही ने स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर बिल्कुल खोए हुए अंदाज में कहा कि बतना कितना डैशिंग है, मेरी तो नीयत खराब हो रही है। ये जुमला भी माही के मुंह से निकला ही था कि कमरे की फिजा में एक भारी और इंतहाई सर्द आवाज उठी। मैं दुरुस्त करता हूँ। आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई। ये सुनते ही माही और सीमा के जिस्म में जैसे खून जम गया। माही की सांस हलक में अटक गई। उसे झटके से पीछे मुड़कर देखा। जलाल शाह दरवाजे के पास खड़ा, उसके हाथ सीने पर बंधे हुए थे। उसकी नज़रों में एक ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना माही के लिए इस वक्त नामुमकिन था। कमरे की मध्यम रोशनी में भी उसका चेहरा इंतहाई सख्त लग रहा था। सीमा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो माही को वहीं अकेला छोड़कर दरवाजे के पास से होती हुई सीधा अपने कमरे की तरफ आ गई। माही अब कमरे में अजलाल के बिल्कुल सामने तना थी। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। उसका दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियां भी टूटती हुई महसूस हो रही थी। अजलाल ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और माही के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। माही खौफ से पीछे हटती, यहाँ तक कि उसकी पुश्त दीवार से जा लगी। अजलाल ने आगे बढ़कर लैपटॉप बंद किया और यूएसबी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। कमरे में एक बार फिर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था और उस अंधेरे में अजलाल की खामोशी किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। उसने अपने मजबूत हाथ माही के बिल्कुल करीब दीवार पर रखे और कदरी चुक कर उसकी आंखों में देखा। क्या ढूंढ रही थी तुम यहाँ? उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। माही के हलक में जैसे कांटे चुभने लगे। उसे कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, मगर खौफ से आवाज ने साथ नहीं दिया। उसका सारा इत्मीनान और गुस्सा जो थोड़ी देर पहले सीमा के सामने अरूज पर था, अब हवा हो चुका था। जवाब तो माही, रात की इस पहर मेरे कमरे में मेरी पर्सनल यूएसबी के साथ तुम क्या कर रही थी? इजलाल की आवाज़ में मौजूद सख्ती ने माही के दिल को एक धक्का सा दिया। मैं वो बस, माही की जुबान बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। वो सुबह आपकी फाइल गायब हो गई थी ना, तो मैं बस वही ढूंढ रही थी। उसने एक इंतहाई बेवकूफ़ाना बहाना तराशा।
जलाल के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मेरी फाइल मेरे लैपटॉप की पर्सनल यूएसबी में छुपी थी, और वो भी तस्वीरों वाले फोल्डर में। उसे माही को मजीद उलझाया। अभी चलने में पहले तो मुझे अपनी नीयत की खराबी का जिक्र कर रही थी। क्या मेरी तस्वीरें देखकर फाइल ढूंढने का इरादा बदल गया था? माही का चेहरा शर्म से और खौफ से सुर्ख हो गया। काश इस वक्त ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मुझे जाने दे जलाल भाई, प्लीज़। मैं आइंदा कभी आपके कमरे में नहीं आऊँगी। माही ने रूहानसी आवाज़ में इल्तिजा की। उसकी आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बहने लगे। जलाल ने यूएसबी अपनी मुट्ठी में मजबूती से दबोची। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जा सकती। पहले तुमने मेरी इतनी अहम कारोबारी फाइल गुम की, और अब तुम रात के अंधेरे में मेरा ज़ाती डाटा चोरी कर रही हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो बस। माही ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की, मगर जलाल ने उसके हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद होंगे, दादा जान, ताया जान। सबके सामने मैं यूएसबी और तुम्हारी इस रात की चोरी का किस्सा रखूंगा। फिर देखते कि इस घर की लाडली का क्या अंजाम होता है। उसके लहजे में एक वाज़े और ख़तरनाक धमकी थी। ये सुनते ही माही के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अगर पूरे ख़ानदान को इस हरकत का इल्म हो गया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। दादा जान को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होंगे। मुझसे गलती हो गई, अब मुझे जो सज़ा देना चाहें दे दें, बस सुबह को किसी को कुछ मत बताइएगा। माही के दोनों हाथ जुड़े हुए थे और वो फूट फूट कर रो रही थी। हजलाल ने उसे रोता हुआ छोड़कर अपना रुख मोड़ लिया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे बाहर जाने का रास्ता दिया। माही मजीद एक पल भी रुके बगैर वहाँ से भाग निकली। उसके जाने के फ़ौरन बाद अजलाल के चेहरे पर मौजूद वो सख्त और गुस्सा वाला तासुर अचानक गायब हो गया, और उसकी जगह इंतहाई नरम, पुरसुकून और फातिहाना मुस्कुराहट ने ले ली। वो जानता था उसने माही को बुरी तरह से डरा दिया है। दर हकीकत उसे इस चोरी पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि माही का वो जुमला उसके कानों में रस घुल गया था। वो लड़की जिसे वो कब से दिल ही दिल में अपना मान चुका था, आज खुद चलकर उसके जाल में आ फंसी थी। ये चोरी उसके लिए वो बेहतरीन मौका थी जिसकी उसे कब से तलाश थी। अगली सुबह घर के लाउंज में नाश्ते की मेज़ पर मामूल की रौनक थी। दादा जान अखबार पढ़ने में मसरूफ थे, जबकि तायाबू और बाकी घर वाले चाय के कप हाथों में थामे खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। माही मेज़ के कोने में सर झुकाए बैठी थी। उसके सामने रखी प्लेट बिल्कुल खाली थी और चाय का कप वैसे का वैसा पड़ा था। उसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थी। वो हर आहट पर चौंक रही थी। उसे यकीन था कि किसी भी पल जलाल आ जाएगा और सबके सामने उसका तमाशा बना देगा। और दूर खड़ी सीमा भी अब खौफ से कांप रही थी। वो बार बार माही की तरफ बेबसी से देख रही थी। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी और जलाल लाउंज में दाखिल हुआ। उसने ग्रे रंग का थ्री पीस सूट पहन रखा था और हमेशा की तरह इंतहाई पुरवक्कार लग रहा था। उसने सबको सलाम किया और दादा जान के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। भाई के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगा जैसे सबको सुनाई दे रही होंगी। उसने कप कांपते हाथों से उठाया और अपने होठों से लगा लिया ताकि अपनी घबराहट छुपा सके। अजलाल ने प्लेट में स्लाइस रखा और इंतहाई सुकून से चाय बनाने लगा। एक नज़र उसने माही के उतरे हुए चेहरे पर डाली, फिर दादा जान की तरफ मुतवज्जा हुआ। दादा जान, मुझे आपसे एक इंतहाई अहम बात करनी है। जलाल की संजीदा और भारी आवाज़ से सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच। मेज़ पर अचानक खामोशी छा गई। दादा जान ने अखबार तह करके साइड पर रखा। जी बेटा बोलो, सब खैरियत तो है ना? दफ्तर का कोई मसला है? माही की सांस रुक गई। उसने आंखें बंद कर ली और वो लम्हा आ गया था जब जलाल सबके सामने रात का किस्सा सुनाने वाला था। उसकी मुट्ठी सख्ती से बंद हो गई थी। नहीं दादा जान, दफ्तर का कोई मसला नहीं है। ये बात मेरे मुस्तकबिल और इस घर के बारे में है। जलाल ने एक लम्हा को वक्फा लिया। उसकी नज़रें माही पर जमी थी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी का फैसला कर दें, और मेरे लिए इस घर में माही से बेहतर कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। मैं माही का रिश्ता मांग रहा हूँ। छनाका माही के हाथ से चाय का कप छूटकर प्लेट में गिरा और गर्म चाय मेज़ पर फैल गई, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। पूरे लाउंज में एक सख्ता सा तारी हो गया। दादा जान के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर इंतहाई गहरी खुशी भरी मुस्कुराहट फैल गई। तैबू ने बेसख्ता माशाल्लाह कहा। माही का दिमाग सुन हो चुका था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो समझी थी कि जलाल उसे चोर साबित करेगा, लेकिन उसने तो सीधा उसकी जिंदगी का सौदा कर दिया था। सदमे के मारे उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकल सका।
उसने फटी फटी आंखों से अजलाल की तरफ देखा, जो कि इंतहाई इत्मीनान से अपना आप स्लाइस खा रहा था, जैसे उसने कोई आम सी बात कही हो। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है अजलाल, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। मैं और तुम्हारे ताया तो कब से यही सोच रहे थे कि तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। दादाजान ने खुशी से अजलाल के कंधे पर हाथ रखा। अगर आप सबकी रजामंदी है दादाजान, तो मेरी तरफ से हाँ है। मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। मेरे पास दफ्तर की मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, बाद में शायद वक्त ना मिले। अजलाल ने इतनी होशियारी से बात की कि किसी को उस पर कोई शक भी ना गुजरा। बिल्कुल बिल्कुल, हम अगले हफ्ते की सादगी से निकाह की तारीख रख देते हैं। बाकी तकरीबात बाद में इत्मीनान से होती रहेंगी। दादाजान ने हतमी फैसला सुना दिया। माही के लिए किसी भयानक ख्वाब जैसा था। वो तेजी से अपनी कुर्सी से उठी। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से सुर्ख हो रहा था। किसी से कुछ कहे बगैर वो तेज कदमों से वहां से निकली और सीधा अपने कमरे की तरफ भागी। नाश्ते के फौरन बाद जब लाउंज खाली हो गया और जलाल अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा, तो माही तूफान की तरह उसके रास्ते में आ खड़ी। ये क्या मजाक था? उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। आपने सबके सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अजलाल ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले और इंतहाई सुकून से उसे देखने लगा। इसमें झूठ क्या था? मैंने रिश्ता मांगा है और दादाजान ने खुशी से दे भी दिया है। तुमने सबकी खुशी नहीं देखी। मुझे किसी किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है। फौरन जाए और दादाजान से कहें कि आपने अपना इरादा बदल लिया है, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। माही ने जैसे उसे हुक्म दिया, अजलाल की आंखों में खतरनाक चमक उठी। उसने अपनी जेब से एक स्याह रंग की यूएसबी निकाली और उसे माही के चेहरे के सामने लहराया। ये देख रही हो? अगर मैंने अभी जाकर दादाजान को बता दिया कि उनकी मासूम पोती रात के 2 बजे मेरे कमरे में मेरा पर्सनल डाटा चोरी कर रही थी, तो सोचो उन पर क्या गुजरेगी। और ये बताने के बाद अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया, तो पूरे ख़ानदान में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम जानती हो कि मेरे दादाजान इज्जत के मामले में कितने हसास है। वो शायद ये सदमा बर्दाश्त भी ना कर सके। माही के कदम लड़खड़ा गए। उसका हर रास्ता बंद हो चुका था। वो उस मगरूर शख्स के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब इतने गिरे हुए इंसान हैं, हम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं महज एक गलत फहमी की बुनियाद पर। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। माही की आंखों से आंसू टूट पड़े और वो बेबसी से रोने लगी। इसे ब्लैकमेलिंग कहो या कुछ और, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे पंगा लिया था माही, अब उसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगले हफ्ते हमारा निकाह है और तुम चुपचाप कबूल है कहोगी, वरना याद रखना खानदानी इज्जत खाक में मिलते देर नहीं लगती। जलाल ने यूएसबी वापस जेब में रखी। उसे वहां रोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। माही वहीं खड़ी अपने आंसू साफ करती रही। उसके अंदर गुस्से का एक नया लावा पक रहा था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि इस जबरदस्ती के रिश्ते को इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देगी। अगर जलाल ने इसे ब्लैकमेल करके शादी की है, तो वो भी इसकी जिंदगी सुकून से नहीं गुजरने देगी। वो उसे मनाएगी नहीं, बल्कि उसे उस फैसले पर पछताने पर मजबूर कर देगी। चंद ही दिनों में घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। वो घर जहाँ हर वक्त माही के कह के खोजते थे, अब वहाँ एक अजीब सी खामोशी और तनाव ने डेरे डाल लिए थे। दादाजान की खुशी दीपनी थी। उन्होंने इंतहाई सादगी मगर वक़ार के साथ निकाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। माही के लिए सब कुछ किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। वो अपने ही घर में एक कैदी बनकर आ गई थी। निकाह वाले दिन वो अपने कमरे में आईने के सामने खामोश बैठी थी। सुर्ख रंग का खूबसूरत अरूसी जोड़ा उसके जिस्म पर किसी बारी जंजीर की तरह महसूस हो रहा था। उसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सूज चुकी थी और चेहरे पर कोई खुशी, कोई चमक नहीं थी। सीमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसके चेहरे पर शदीद नदामत और दुख था। माही, सीमा ने डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखा और बोझल आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से, मेरी बुज़दिली की वजह से आज तुम इस हाल तक पहुंची हो। अगर मैं उस रात तुझे वहाँ अकेला ना छोड़ती, तो शायद तुम्हारी कोई गलती नहीं है सीमा। माही ने आईने में अपना बेजान अक्स देखा और स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, ये सब उस मगरूर और अनापरस्त इंसान की साजिश थी। वो बस एक मौके की तलाश में था कि किस तरह मुझसे नीचा दिखा सके। उसने मेरी एक छोटी सी गलतफहमी को बुनियाद बनाकर मेरी पूरी जिंदगी का सौदा कर लिया। लेकिन वो नहीं जानता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तू क्या करेगी माही? वो अब तेरा शौहर बनने वाला है।
खुदा रहा कोई नया तमाशा मत खड़ा करना, दादा जान की इज्जत का सवाल है। सीमा ने उसे समझाने की कोशिश की। इज्जत? माही के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट उठी। इसी इज्जत के नाम पर तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। मैं चुप रहूं सीमा, सबके सामने एक फर्मा बरदार और खुशहाल लड़की होने का डरामा भी करूं, लेकिन जब हम अकेले होंगे तो मैं उस शख्स की जिंदगी अजाब बना दूंगी। वो रोज इस फैसले पर पछताएगा। थोड़ी देर बाद उसे बाहर लॉन्च में लाया गया। काजी साहब सामने बैठे थे। अजलाल उनके बिल्कुल पास बैठा था। उसे सफ़ेद रंग का शलवार कमीज और स्याह वास्केट पहन रखी थी। वो हमेशा की तरह पुरकशिश और पुरवक्कार लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट थी, जिसने माही के अंदर गुस्से की आग को मजीद भड़का दिया था। माही बीबी बिनते शफीक अहमद, क्या आपको अजलाल शाह इब्ने कमाल शाह हकमहर 50,000 रुपये की अवज़ अपने निकाह में कबूल है? काजी साहब की भारी आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नज़रें माही पर जमी थी। माही के हाथ कांप रहे थे। उसे सर उठाकर एक नज़र दादा जान को देखा, जिनकी आंखों में उम्मीद और खुशी के आंसू थे। फिर उसकी नज़रें जलाल पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में एक चैलेंज था। माही ने अपनी आंखें सख्ती से बंद की और एक आंसू टूट कर उसके गाल पर गिरा। उसने कांपती हुई और भराई हुई आवाज़ में कहा, कबूल है। 3 बार ये अल्फाज अदा करने के बाद उसे लगा जैसे उसने अपनी आज़ादी के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। सब खुश थे सिवाय उस लड़की के जिसकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दिन था। निकाह के बाद जब वो दोनों पहली बार अपने कमरे में अकेले हुए तो माहौल में एक शदीद और दम घुटने वाली कशीदगी थी। माही बैठ के एक किनारे पर बैठी थी। उसका सर झुका हुआ था और वो अपने दुपट्टे के किनारे को सख्ती से मुट्ठी में दबाए हुए थी। दरवाज़ा खुला और जलाल अंदर दाखिल हुआ। उसे सुकून से दरवाज़ा बंद किया और चल कर माही के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। माही ने यकदम सर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ शदीद नफरत थी। उसने जलाल को ऊपर से नीचे तक देखा और तंजी अंदाज में बोली, मुबारक हो जलाल शाह साहब, आपने अपनी अना की तस्कीन के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कैसा लग रहा है जीत कर? अजलाल ने अपने दोनों हाथ जेबों में डाले और उसके चेहरे को बगौर देखा। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसकी जगह एक संजीदा तासुर ने ले ली थी। मैंने कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है माही। मैंने सिर्फ उस चीज़ को अपना बनाया जिस पर मेरा हक था। तुमने चोरी की और मैंने उसके बदले में तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया। हिसाब बराबर हो गया। उसका लहजा इंतहाई ठंडा और पुरएतमाद था। कौन सा हक? माही अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो इस वक्त गुस्से से कांप रही थी। आपने मुझे ब्लैकमेल किया है। आपने दादा जान की इज्जत का वास्ता देकर मुझे मजबूर किया। आपको लगता है कि आप इस तरह मुझ पर कब्जा कर लेंगे? ये रिश्ता मेरे लिए एक धोखा है, एक ज़बरदस्ती का सौदा है। मैं इसे कभी दिल से तस्लीम नहीं करूंगी। आप मेरे शौहर कहला सकते हैं, लेकिन मेरे दिल पर आपका कोई हक नहीं है। जलाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। माही पीछे नहीं हटी। वो पूरी हिम्मत से उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। वक्त सब सिखा देता है माही। आज तुम गुस्से में हो, लेकिन कल तुम्हें इसी रिश्ते, इसी कमरे में सुकून मिलेगा। तुम जितना मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें उतना ही अपने करीब कर लूंगा। मैंने तुम्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की है, तो यूं आसानी से तुम्हें हारने नहीं दूंगा। उसने इंतहाई नरम मगर पुख्ता लहजे में जवाब दिया था और मुड़कर सोफे की तरफ चला गया। माही उसे देखती रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो कुछ उठाकर उसके सर पर दे मारे। ये शख्स कितना ढीठ और बेहिस था। उसने दिल ही दिल में तहैया कर लिया था कि उस जंग में आसानी से हार नहीं मानेगी। शादी के बाद के इब्तदाई दिन एक खामोश जंग और शदीद कशीदगी में गुजरने लगे। घर वालों के सामने दोनों मियाँ बीवी एक मिसाली और खुशगवार जोड़ा होने का बेहतरीन ड्रामा करते थे। सुबह नाश्ते की मेज़ पर जलाल माही को प्लेट में स्लाइस रख कर देता। माही मुस्कुराकर चाय का कप उसके आगे रखती। दादा जान और बाकी घर वाले उनकी मोहब्बत देखकर दिल ही दिल में खुश होते रहते। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने कमरे की चार दीवारी में दाखिल होते, उनके दरमियान मौजूद मुस्कुराहटें गायब हो जाती और बर्फ जैसी सर्द महरी छा जाती। माही ने जलाल से सीधे मुंह बात करना ही छोड़ दी थी। उसकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती थी, उसके कपड़े प्रेस नहीं करती थी, उसका कोई काम नहीं करती थी। वो जानबूझकर ऐसा रूप धारे रखती थी जिससे जलाल को गुस्सा आए। एक सुबह माही के कमरे में अकेली थी। जलाल बाथरूम में
शॉवर ले रहा था। माही ने अलमारी खोली तो सामने जलाल की पसंदीदा नीले रंग की कमीज लटकी हुई थी, जो वो आज दफ्तर पहनकर जाने वाला था। माही के दिमाग में अचानक एक शरारत और बदले का ख्याल आया। उसने कमीज निकाली और इस्त्री वाले स्टैंड पर फैला दी। उसने इस्त्री को फुल तेज गर्म किया और कमीज के बिल्कुल दरमियान में रखकर छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में कमरे में कपड़ा जलने की तेज बू फैलने लगी। इस्त्री के नीचे से धुआं उठने लगा। माही बेड पर सुकून से बैठी उस धुएं को देख रही थी। उसे यकीन था कि जब जलाल बाहर आकर अपनी सबसे महंगी और पसंदीदा कमीज का ये हाल देखेगा तो वो अपने आपे से बाहर हो जाएगा। वो उस पर चीखेगा, चिल्लाएगा और फिर उनके दरमियान एक जबरदस्त झगड़ा होगा। मैं इस झगड़े के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो अपने अंदर का सारा गुबार निकालना चाहती थी। बाथरूम का दरवाजा खुला और जलाल तौलिए से बाल खुश करता हुआ बाहर आया। कमरे में फैले धुएं और जलने की बू ने फौरन उसकी तवज्जो खींची। उसकी नजर इस स्टैंड पर पड़ी जहां से जहां से धुआं निकल निकल रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और स्त्री को उठाकर साइड पर किया। कमीज के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा स्याह और जला हुआ सुराख बन चुका था। कमीज पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। सलाल ने जली हुई कमीज को देखा और फिर नजरें घुमाकर माही की तरफ देखा। माही बेड पर टांगे लटकाए बैठी थी और इंतहाई सुकून से अपने नाखून साफ कर रही थी, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। वो अंदर से जलाल के फटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तोहका के बिल्कुल बरअक्स जलाल के चेहरे पर गुस्से की कोई लकीर नमूदार नहीं हुई। उसने गहरी सांस ली, जली हुई कमीज को स्टैंड से उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने एक तंजिया और मुस्कुराती हुई नजर माही पर डाली। बहुत शुक्रिया माही, मुझे वैसे भी ये रंग अब तक खास पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा किया तुमने जला दिया। कम से कम मुझे नई कमीज निकालने का बहाना तो मिल गया ना। लेकिन अगली बार स्त्री का ध्यान रखना कि कमीज चलाते चलाते तुम अपने हाथ ही न चला बैठो। ये कहकर उसने इंतहाई सुकून से अलमारी खोली और एक और सफ़ेद रंग की शर्ट निकाली और उसे पहनने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माही के अंदर गुस्से का एक तूफान मचल उठा। उसकी सारी प्लानिंग, सारी मेहनत ज़ाया हो गई थी। उसका मकसद जलाल को गुस्सा दिलाना था, लेकिन उस शख्स का ये ठंडा, बेपरवाह और तंजिया रवैया माही को अंदर से मजीद चिड़चिड़ा और पागल कर रहा था। वो दांत पीसते अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। जलाल ने मुस्कुराते उसे जाते हुए देखा। वो जानता था कि माही जानबूझकर उसे उकसा रही है और वो किसी सूरत उसे कामयाब नहीं होने देना चाहता था। वो अपनी अना की जंग में उसे हराना चाहता था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। माही ने अब एक नया तरीका अपना लिया था। रात को जब सोने का वक्त होता, वो बेड पर सोने की बजाय अपना तकिया और कंबल उठाती और कमरे में रखे लंबे सोफे पर जाकर लेट जाती। पहली बार जब रात उसने ऐसा किया तो जलाल लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे माही को सोफे पर लेटते देखा तो चौंका। ये क्या कर रही है? बेड पर आकर सो जाओ, सोफे पर गर्दन दर्द हो जाएगी। उसने नॉर्मल अंदाज में कहा, मुझे जहाँ सुकून मिलेगा मैं वहीं सोऊंगी। आपको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ एक बेड पर नहीं सो सकती। माही ने मुंह दूसरी तरफ करते दो टोक अंदाज में जवाब दिया। जलाल की अना को ठेस लगी। उसने लैपटॉप बंद किया और गुस्से से बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें सोफे पर सोना पसंद है तो शौक से सो। मैं तुम्हें मिन्नतें तुम्हारी करने वाला नहीं हूँ। उस रात के बाद ये एक मामूल बन गया। माही रोजाना सोफे पर सोती और जलाल बेड पर। दोनों के दरमियान खामोशी की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई थी। जलाल अपनी अना के खौल में बंद था और खामोशी से उसके ये तमाम नखरे और ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहा था। उसे दिखाना चाहता था कि उसे उसकी बेरुखी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये खामोशी और माही की ये उदासी अब जलाल को अंदर से बेचैन और खोखला करने लगी थी। वो जब भी माही को देखता, उसे वो पुरानी माही याद आती, जो पूरे घर में तितली की तरह उड़ती फिरती थी, जिसकी हंसी से घर की दीवारें गूंजती थी, जिसकी छोटी छोटी शरारतें सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती थी। और वो माही कहीं खो गई थी। अब जो लड़की उसके सामने थी, उसके चेहरे पर हर वक्त एक थकावट, एक बुझा हुआ पन और एक अजीब सी खामोशी रहती थी। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। वो घर वालों के सामने हंसती जरूर थी, लेकिन अजलाल जानता था कि वो हंसी खोखली थी। रात के पिछले पहर जब माही सोफे पर सो रही होती, जलाल जाग कर उसे देखता रहता। उसे सोफे पर सिमट कर सोते देख जलाल के दिल में एक अजीब सी चुभन और तकलीफ होती। उसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि उसने अपनी जिद, अपनी अना और माही को पाने की चाह में दरअसल उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली है। उसने एक हंसती खेलती लड़की की मुस्कुराहट, उसकी मासूमियत
اور اس کی خوشی چھین لی تھی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ زبردستی کے رشتے، دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے وہ جسم تو پا سکتا ہے لیکن دل کبھی نہیں جیت سکتا۔ وہ کئی بار ارادہ کرتا کہ ماہی کے پاس جائے، اس سے بات کرے، اسے بتائے کہ اسے کتنی محبت کرتا ہے اور اسے جو کچھ کیا وہ صرف اسے کھونے کے ڈر سے کیا۔ ایک شام جلال دفتر سے واپس آیا۔ ماہی کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جلال نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ کر کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ ماہی نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ماہی، آخرکار جلال نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں وہ پرانی سختی اور غرور نہیں تھا بلکہ ایک نرمی اور التجا تھی۔ ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ کب تک یہ خاموش جنگ بندی چلتی رہے گی؟ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرا طریقہ غلط تھا، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ ماہی نے کتاب بند کی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ نئی شروعات؟ کس بنیاد پر جلال صاحب؟ بلیک میلنگ کی بنیاد پر؟ مجبوری یا زبردستی کی بنیاد پر؟ آپ نے مجھ سے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ چھین لیا اور اب آپ مجھ سے امید کر رہے ہیں کہ میں سب کچھ بھول کر آپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ جلال وہیں بیٹھا اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے دل میں جمی ہوئی برف کو آخر کیسے پگھلائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید ان کے درمیان موجود یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ چل رہا تھا جس کی مدھم روشنی نے ماحول کو مزید اداس کر رکھا تھا۔ جلال کسی اہم کاروباری میٹنگ کی وجہ سے گھر نہیں آیا تھا۔ ماہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں پرانی تصویروں والی البم رکھی تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ البم میں اس کی اپنی ایک مسکراتی ہوئی تصویر تھی، سرخ لباس پہنے، کتنے دل سے ہنس رہی تھی۔ ماہی نے کانپتی انگلیوں سے تصویر کو چھوا۔ کہاں چلی گئی وہ ماہی؟ اس نے سسکی لیتے ہوئے خود سے بات کی۔ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ اس نے البم بند کر کے بیڈ کی دوسری طرف پھینکی۔ مسلسل رونے سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اسے پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا جہاں پانی کا بھاری شیشے والا جگ رکھا ہوا تھا۔ ماہی کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس نے جگ سنبھالنا اس سے مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے اس نے جگ کو گلاس کی طرف جھکانا چاہا، گرفت کمزور پڑی۔ جگ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور سیدھا فرش پر جا گرا۔ رات کی سناٹے میں شیشے کے ٹوٹنے کی زوردار آواز کمرے میں گونجی۔ جگ کے ان گنت ٹکڑے فرش پر بکھر گئے اور پانی ہر طرف پھیل گیا۔ ماہی صدمے اور خوف کے عالم میں بیڈ سے نیچے اتری اور وہیں گیلے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے بغیر اسی بدحواسی میں شیشے کے وہ تیز ٹکڑے چننا شروع کر دیے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اچانک کانچ کا ایک بہت بڑا اور تیز دھار ٹکڑا اس کی دائیں ہتھیلی کے اندر گہرائی تک اتر گیا۔ درد کی شدید لہر پورے بازو میں پھیل گئی۔ ماہی کے منہ سے بے ساختہ ایک دل خراش چیخ نکلی۔ خون تیزی سے نکلا اور پانی سے گیلے فرش پر گر کر سرخ دھبے بنانے لگا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور جلال جو ابھی گھر پہنچا تھا، ٹوٹنے کی آواز اور ماہی کی چیخ سن کر گھبراہٹ میں سیدھا کمرے کی طرف بھاگا۔ اندر کا منظر اس کے قدم جمانے کے لیے کافی تھا۔ بریف کیس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ماہی فرش پر بیٹھی تھی۔ چاروں طرف ٹوٹا ہوا شیشہ اور خون بہہ رہا تھا۔ جلال کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ ایک پل ضائع ہوئے بغیر آگے بڑھا اور شیشے کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے بغیر ماہی کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہی، اس کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو آج سے پہلے کبھی سنائی نہیں دی تھی۔ اسے فوراً ماہی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جلال کے اپنے مضبوط ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اسے گھبراہٹ میں ماہی کے ہاتھ میں دھنسا وہ کانچ کا ٹکڑا انتہائی احتیاط مگر تیزی سے کھینچ کر نکالا۔ ماہی نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کر لی اور ایک اور سسکی بھری۔ جلال نے جلدی سے شرٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اسے ماہی کی ہتھیلی کے زخم پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ جلال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بھوجل انداز میں بات کی۔ یہ کیا کر رہا تم نے اپنے ساتھ؟ اگر یہ شیشہ کسی اور جگہ لگ جاتا تو کچھ ہو جاتا تمہیں تو؟ آواز بھرا گئی تھی۔ اسے سر اٹھا کر ماہی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ماہی درد سے رو رہی تھی لیکن جلال کی حالت پر وہ ایک دم ساکت بھی رہ گئی تھی۔ اسے حیرانی اور بے یقینی سے اس مغرور شخص کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ ان گہری سے آنکھوں میں آج کوئی غرور یا سختی نہیں تھی، وہاں صرف ماہی کو کھونے کا
ایک شدید خوف تھا۔ اجلال کے چہرے پر موجود طرف اتنی سچی تھی کہ ماہی کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ شخص جس نے اسے بلیک میل کر کے شادی کی، آج وہ اس کی ذرا سے خون نکلنے پر اتنی بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ اجلال کی حالت دیکھ کر ماہی کے اندر کا ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اندر مہینوں سے جمع ہونے والا سارا غبار تکلیف کی صورت میں اور گھٹن ایک طوفان کی طرح باہر آنے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے اپنا بھایا ہاتھ اجلال کی گرفت سے چھڑایا اور پوری طاقت سے اس کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا؟ وہ روتے ہوئے پوری طاقت سے چلا رہی تھی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے مرنے جینے سے؟ آپ تو یہی چاہتے تھے نا کہ میں ہر روز اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں۔ آپ نے میری زندگی عذاب کر دی ہے جلال شاہ۔ وہ مسلسل مار رہی تھی اور جلال بغیر کوئی مزاحمت کی بالکل خاموشی سے فرش پر بیٹھا، اس کی ہر مار سہ رہا تھا۔ اسے ماہی کا ہاتھ روکنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ماہی کی آواز رونے کی وجہ سے پھٹ رہی تھی۔ صرف ایک چوڑی کے بدلے اتنی بڑی سزا، میری ساری خوشیاں، میری ہنسی، میرا سکون چھین لیا تم نے۔ مجھے اس بند کمرے میں قیدی بنا کر رکھ دیا۔ مجھے آزاد کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیوں روز روز مار رہے ہو؟ مجھ سے یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ میں تھک گئی ہوں تمہاری اس خاموشی سے، تمہاری اس انا سے۔ چھوڑ دو مجھے۔ ماہی کے الفاظ جال کے دل پر کسی تیز خنجر کی طرح بے دردی سے لگ رہے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا، اپنے ظلم کا اتنا شدید احساس ہوا کہ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ماہی کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ ماہی مارتے مارتے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کی طاقت ختم ہو رہی تھی اور سر چکرانے لگا تھا۔ جلال مزید برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر اچانک ماہی کو اپنے بازوں کے مضبوط گھیرے میں لے لیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ اچانک قربت تھی، لیکن ماہی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ اجلال کے گلے لگ کر اور بھی اونچی آواز میں کسی چھوٹی بچی کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اجلال کی شرٹ کے کالر میں الجھا لیے اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اجلال نے بازو اس کی گرد مزید کس لیے، اسے اس طرح چھپا لینا چاہتا تھا کہ دنیا کا کوئی دکھ اسے چھو بھی نہ سکے۔ اس نے انتہائی محبت اور درد سے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے اپنے آنسو مسلسل ماہی کے بالوں میں گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو ماہی، اس نے اپنے خشک ہونٹوں سے ٹوٹی ہوئی آواز میں بات کی۔ خدا کی قسم، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ڈر گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کوئی اور مجھے دور نہ لے جائے۔ میں نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، لیکن میں تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے سزا دے لو، مجھے مار لو، لیکن خدا را یوں خود کو اذیت مت دو۔ میری جان نکل جاتی ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ اس رات پہلی بار ان دونوں کے درمیان موجود ضد، غصے اور انا کی وہ مضبوط دیوار جو انہوں نے خود اپنے ارد گرد کھڑی کر رکھی تھی، ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو گئی۔ ان کے درمیان اب کوئی فاصلہ، کوئی غلط فہمی باقی ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے بیٹھے تھے اور اس بڑے سے کمرے میں کافی دیر تک صرف مائی کی سسکیوں اور جلال کی بھاری سانسوں کی آوازیں گونجتی رہی۔ اجلال اسے تب تک اپنی سینے سے لگائے بیٹھا رہا جب تک ماہی کا رونا کچھ کم نہ ہو گیا، خوشکیاں تھوڑی پرسکون نہ ہو گئی۔ اسے محسوس کیا کہ ماہی کا جسم اب اس کی باہوں میں نڈھال ہو چکا ہے۔ اسے بڑی احتیاط سے ماہی کو اپنے سے تھوڑا دور کیا۔ چہرہ آنسو سے مکمل بھیگا ہوا تھا اور بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ جلال نے انگوٹھے کی مدد سے بہت نرمی سے اس کی گالوں پر موجود آنسو صاف کیے۔ بہت رو لیا تم نے، بس اب اور نہیں۔ اجلال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے انتہائی ملائم آواز میں سرگوشی کی۔ اس نے ماہی کو اپنے بازوؤں کے سہارے فرش سے اٹھایا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماہی مکمل طور پر خاموش تھی۔ وہ بس خالی نظروں سے جلال کے حرکات کو محسوس کر رہی تھی۔ ذہن میں کشمکش چل رہی تھی کہ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جس سے وہ اتنے دل دور بھاگتی رہی۔ اجلال نے اپنا خون سے لت پت رومال اس کے ہاتھ سے کھولا۔ خون کا بہاؤ اب رک چکا تھا، لیکن زخم واقعی گہرا تھا۔ اسے جلدی سے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور واپس آ کر بیڈ پر ماہی کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ماہی کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے روئی میں جراثیم کش دبا لگائی۔ تھوڑی سی جلن ہوگی، بس تھوڑی۔ اس نے ماہی کو تسلی دی اور احتیاط سے اس کے گہرے زخم کی صفائی کر دی۔ ماہی مسلسل اس کے چہرے کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ چہرہ جو ہمیشہ اتنا سنجیدہ اور سخت لگتا تھا، آج کتنا نرم اور مہربان لگ رہا تھا۔ اجلال کی آنکھوں میں اس وقت ماہی کے لیے بے پناہ فکر جھلک رہی تھی۔ وہ کوئی ڈرامہ یا جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی۔
माही का दिल मोम की तरह पिघल रहा था। जख्म साफ करने के बाद अजलाल ने उस पर दवाई लगाई और बहुत एहतियात से पट्टी बांधी। इस सारे अमल के दौरान उसने बार बार माही के चेहरे की तरफ नजर की, कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा। माही पट्टी मुकम्मल करने के बाद माही को लगा कि अब जलाल उठकर सोफे पर बैठ जाएगा, लेकिन इजलाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बेड से नीचे उतरा और वहीं फर्श पर माही के कदमों में बैठ गया। उसने माही का दूसरा सही सलामत हाथ अपने मजबूत हाथों में थामा और उसकी आंखों में इंतहाई सच्चाई से झांका। माही साकित बैठी उस सख्त मिजाज शख्स का ये नरम रूप देख रही थी और हैरान थी। वो शख्स जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, वो आज उसके कदमों में बैठा उसे इतनी मोहब्बत से महसूस कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इजलाल ने इंतहाई धीमी और पुरसुकून आवाज में बोलना शुरू किया। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी वो यूएसपी वाली बात पकड़ कर तुम्हें फंसाया, या मैंने ये सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है? मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद तुम्हें जबरदस्ती इस कमरे में कैद करना था। अजलाल ने एक गहरी बोझल सांस ली और उसकी आंखों में बराह रास्त देखा। नहीं, सच तो यह है कि मैं तुम्हें उस दिन से चाहता हूँ जब तुमने शायद ठीक से होश भी नहीं संभाला था। इस पूरे घर में सिर्फ तुम ही तो थी जिसकी हंसी से मेरी दिन की भर की थकावट भी दूर हो जाती थी। मैं हमेशा दूर से बड़ी खामोशी से तुम्हें मुस्कुराते बातें करते और पूरे घर में शरारतें करते देखता था। तुम्हारी वो मासूमियत, तुम्हारी वो बेफिक्र अंदाज मुझे हर रोज़ तुम्हारी तरफ खींचता। लेकिन अजलाल ने बात अधूरी छोड़ दी और नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। लेकिन मैं मजबूर था। मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा था। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी। मैंने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा हॉल चढ़ा लिया था, ऐसी संजीदगी ओढ़ ली थी कि तुम सब बच्चे मुझसे डरने लगे थे। मैं जानता था कि तुम मुझे सिर्फ एक सख्त मिजाज, बोरिंग और मगरूर इंसान समझती हो। मैं अपने इस खौल से बाहर नहीं आ सकता था और तुम मेरे करीब नहीं आ सकती थी। मुझे हर वक्त, हर लम्हे, दिन रात सिर्फ ये डर खाया जाता था कि कल को दादा जान तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में दे देंगे, कोई और तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा और मैं हमेशा के लिए तन्हा रह जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम मेरी जिंदगी थी माही। माही की आंखों में हैरत से उसकी पूरी तरह से खैर गई थी। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। वो शख्स जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, जिसकी हर बात से उसे चिढ़ होती थी, आज उसके मुंह से ये सब सुनकर मुकम्मल तौर पर किसी शहर में गिरफ्तार हो रही थी। उसके कानों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जलाल शाह जैसे अनाप्रस्त और मजबूत इंसान उसके सामने बैठा अपने दिल की एक एक बात इतनी बेबसी से खोल रहा है। फिर वो चोरी वाली बात। जलाल ने दोबारा सर उठाया और इस बार उसके लबों पर एक इंतहाई दिलकश और सच्ची मुस्कुराहट थी। मैं उस रात बहुत गुस्से में था, ये सच है। दफ्तर का वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत अहम था और तुम्हारी लापरवाही ने मुझे परेशान कर दिया था। लेकिन जब तुम और सीमा मेरे कमरे में आए, मैं सोया नहीं था, मैं जाग रहा था। मैंने तुम्हें अंधेरे में लैपटॉप खोलते देखा। मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़कर सिर्फ डराना चाहता था ताकि दोबारा कभी ऐसा ना हो। लेकिन फिर अजलाल रुका। उसने माही के हाथों पर अपने अंगूठे से इंतहाई नरमी से हल्का सा दबाव डाला और उसकी आंखों की गहराई में झांका। फिर मैंने अंधेरे में वो जुमला सुना, मेरी तो नीयत ही खराब हो रही है। ये सुनते ही माही का चेहरा एकदम से लाल हो गया। शर्मिंदगी की एक शदीद लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई और उसने फौरन से अपनी नजरें झुका ली। जलाल हल्की और पुरसुकून आवाज में हंसा। ये हंसी माही ने बहुत अरसे बाद सुनी थी। यकीन करो माही, मैं तो उसी दिन, उसी लम्हे पूरी तरह से हार गया था जब तुमने वो बात कही थी। वो चोरी वाला वाक़या तो बस एक बहाना था। मुझे वो मौका मिल गया था जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मैं बस तुम्हें किसी भी तरह अपने नाम से बांधना चाहता था और मैंने वही किया। मेरा तरीका गलत था, बहुत गलत था, जिसकी माफ़ी मैं शायद सारी ज़िंदगी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम पर रोब डाला, तुम्हें डराया, लेकिन मेरा जज्बा, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, मैं बस तुम्हें पाना चाहता था। और जब तुमने मुझसे बात करना छोड़ दी तो मुझे लगा जिससे मेरी जान निकल गई हो। मैंने तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं की कर सका। माही का दिल जैसे किसी ने नरमी से अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। उस सख्त खौल के अंदर, उस गुरूर और अना के पीछे उसके लिए कितनी गहरी और सच्ची मोहब्बत छुपी थी, इसका मुकम्मल अंदाज़ा उसे आज इस लम्हे हो रहा था। उसके अंदर महीनों से जमी हुई सारी बर्फ़ पिघल कर आंसू के रास्ते बह चुकी थी। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया और जाल की नम
और मोहब्बत भरी आंखों में देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, कोई साजिश या ब्लैकमेलिंग नहीं थी। वहां सिर्फ एक सच्ची, खड़ी और बेलौस मोहब्बत थी। उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत, सब कुछ जैसे धुएं की तरह उड़ गया। अब कितने बुरे हैं जलाल, माही ने नम और कांपती हुई आवाज में कहा। मगर इस बार उसकी आवाज में कोई गुस्सा, कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी अपनायत थी। आपने मुझे कितना रुलाया, कितना डराया। अगर आप मुझसे सीधी तरह बात करते तो शायद ये सब ना होता। मैं वादा करता हूँ माही, आज के बाद तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। मैं कभी तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होने दूंगा। अजलाल ने उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अपने लब रख दिए थे। ये उसका पहला सच्चा और इंतहाई जज्बाती इकरार था। उस रात उस पुरतइश कमरे में उन दोनों के दरमियान मौजूद हर गलतफहमी, हर दूरी और हर अना की दीवार हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। माही के दिल की वो बंजर और वीरान दुनिया जो महीनों से खुश्क पड़ी थी, उसमें जैसे एक ही पल में हजारों रंग बिरंगे फूल खिल उठे थे। उसने सच्चे दिल से जलाल की मोहब्बत को महसूस किया। उसके हर जख्म, हर तकलीफ पर जैसे एक ठंडा मरहम रखा गया। उस जज्बाती, सच्ची और लंबी रात के बाद उन दोनों की ज़िंदगी जिंदगी का रंग और अंदाज बिल्कुल ही बदल गया था। अगली सुबह जब माही सोकर उठी तो सूरज की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसने खुद को सोफे पर नहीं बल्कि एक नरम बिस्तर पर पाया। स्टार कमरे में नहीं था, वो जा चुका था। लेकिन साइड टेबल पर एक ताज़ा सुर्ख गुलाब और उसके साथ एक छोटी सी चिट रखी हुई थी। माही ने मुस्कुराते हुए चिट उठाई। उस पर लिखा था, मेरी जिंदगी में वापस आने का बहुत शुक्रिया। जल्दी से नीचे जाओ, तुम्हारे बगैर नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा। माही के होंठों पर एक ऐसी गहरी मुस्कुराहट उभरी जो पिछले कई महीनों से उसके चेहरे से मुकम्मल तौर पर गायब थी। उसने जल्दी से तैयार होकर हल्के नीले रंग का सूट पहना और लाउंज में गई। हजीलाल नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार देख रहा था। माही को देखते उसने अखबार एक तरफ रखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। माही ने भी शर्मा कर नजरें झुकाई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सीमा, जो किचन से चाय ला रही थी, उन दोनों के चेहरे पर मौजूद ये नरमी और मुस्कुराहट देखकर हैरान रह गई। उसने माही को इशारे से पूछा, लेकिन माही ने सिर्फ आंख दबाकर मुस्कुरा दिया। दादा जान भी उनकी इस बदलती और खुशगवार हालत को देखकर बेहद खुश थे। वक्त के साथ साथ घर की वो तमाम रौनकें फिर से बहाल होने लगी थी। माही की वही पुरानी दिलकश मुस्कुराहट, उसकी ऊंची आवाज में की जाने वाली बातें और पूरे घर में गूंजने वाली चहचहाहट वापस लौट आई थी। वो पूरे घर में फिर से एक खुश मिजाज तितली की तरह उड़ने लगी थी। लेकिन अब उसकी उड़ान और उसकी खुशियों का वाहिद मरकज जलाल था। वो जलाल से भागने या चिढ़ने की बजाय उसकी हर छोटी बड़ी चीज का दिलो जान से ख्याल रखने लगी थी। सुबह उसके कपड़े निकालना, उसका पसंदीदा नाश्ता अपने हाथों से तैयार करना, उसकी टाई सेट करना और शाम को उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार करना माही की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और अहम हिस्सा बन चुका था। दूसरी तरफ जलाल का तो जैसे पूरा रूप और मिजाज ही बदल गया था। वो शख्स जिसके माथे पर हमेशा संजीदगी की शिकने रहती थी, जो घर में कम ही मुस्कुराता था, अब उसके चेहरे पर हर वक्त एक पुरसुकून और गहरी मुस्कुराहट रहती थी। वो अपना सारा पुराना गुस्सा, अपनी तमाम सख्ती भूल चुका था। माही जानबूझकर कभी कभी उसकी चीजें छुपा देती या उसे तंग करने के लिए कोई शरारत करती, तो जलाल गुस्सा करने के बजाय खुलकर हंस पड़ता और प्यार से उसके बाल बिगाड़ देता। दोनों ने एक दूसरे को उनकी तमाम खामियों और खूबियों के साथ मुकम्मल तौर पर अपना लिया था। अब उनके रिश्ते में कोई खौफ, कोई ज़बरदस्ती, कोई फासला या कोई ब्लैकमेलिंग नहीं थी। उनके दरमियान एक इंतहाई गहरी दोस्ती, बेतकल्फी, एक ऐसी सच्ची मोहब्बत ने जगह ले ली थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। घर वाले भी उन दोनों की इस खूबसूरत, मुस्बत और हैरान कुन तब्दीली को देखकर दिलो जान में बहुत खुश थे और मुतमईन थे। घर का माहौल बहुत अब जन्नत का नमूना बन चुका था। दिन इसी तरह हंसी खुशी गुजरते गए। एक खूबसूरत और ठंडी शाम थी। अजलाल ऑफिस में एक लंबी मीटिंग के बाद वापस आया तो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। माही किचन में रात के खाने की तैयारी देख रही थी। अजलाल की गाड़ी की जानी पहचानी आवाज़ सुनते उसने फौरन काम छोड़ा और उसके लिए उसकी पसंदीदा चाय बनाने लगी। कुछ देर के बाद माही चाय का कप लेकर कमरे में दाखिल हुई तो अजलाल वॉशरूम में था। उसने चाय मेज़ पर रखी और अलमारी खोलकर अजलाल के कल के लिए कपड़े निकाल कर सेट करने लगी। वो शर्ट्स को तरतीब दे रही थी जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अजलाल ने तौलिए से अपना चेहरा साफ किया
اور ماہی کو الماری کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے تولیہ کرسی پر پھینکا اور انتہائی خاموشی سے دبے قدموں چلتا ماہی کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماہی اپنی دھن میں مگن کپڑے ہینگر میں لٹکا رہی تھی، لیکن جیسے اسے اپنے بالکل پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا وہ چونکی، اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، اجلال نے اپنا ایک ہاتھ الماری کے دروازے پر رکھ دیا اور اسے اپنے اور الماری کے درمیان قید کر لیا۔ اس کی اچانک قربت پر ماہی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی قربت پر وہ شرما کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اجلال نے انتہائی پیار سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور مسکرایا۔ آج کل میری بیوی کچھ زیادہ ہی فرما بردار لگ رہی ہے، اور تابع دار بھی۔ اجلال نے اسے پیار سے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بھاری آواز میں ایک خاص قسم کی نرمی اور شرارت تھی۔ ماہی نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھانا چاہا، لیکن اجلال کی وہ گہری مسکراتی ہوئی نظریں دیکھ کر دوبارہ خاموش ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کہیں کوئی نیا خرافاتی پلان تو نہیں بن رہا میرے خلاف؟ اجلال نے تھوڑا سا مزید جھک کر ماہی کے بالکل قریب ہوتے شرارت سے پوچھا، یا پھر آج کل دوبارہ سے میری چیزیں دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو رہی ہے؟ اس پرانے اور ان کی زندگی کے بدل دینے والے ڈائلاگ کو بالکل اسی انداز میں سن کر ماہی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بے اختیار مسکراتی اور اس کی ساری جھجک لمحوں میں ختم ہو گئی۔ ماہی نے مسکراتے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا اجلال کی ان پرکشش اور گہری آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ اسے پوری سچائی، بے باکی اور محبت سے جواب دیا، سچ بتاؤ، اب تو میری نیت واقعی میں بہت بری طرح سے خراب ہو گئی ہے۔ اجلال کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بھویں چکا کر پوچھا، اچھا تو پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ارادہ تو بہت پکا ہے، ماہی نے شرارت سے اپنی پلکیں جھپکا کر انتہائی محبت سے اضافہ کیا، اور اب آپ سن لیں، یہ نیت زندگی بھر کے لیے صرف اور صرف آپ ہی پر خراب رہے گی۔ اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ اس کا یہ معصومانہ، شرارتی اور محبت بڑا اقرار سن کر اجلال کا دل جیسے خوشی سے بڑھ گیا۔ اس کی ساری تھکاوٹ اڑن چھو ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی محبت اور عقیدت سے ماہی کی پیشانی چومی اور پھر اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے اظہار میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماہی نے بھی ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے اجلال کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی، جو اب ہمیشہ کے لیے صرف اسی کا نام لے رہی تھی۔ ان کی زندگی کا وہ گھٹن، مشکل اور عجیب سفر، جو ایک غلط فہمی، مجبوری اور انا کی ایک خاموشی جنگ کے ساتھ شروع ہوا تھا، اب ایک بے حد خوبصورت اور پرسکون منزل پا چکا تھا۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ رشتے زبردستی، ضد یا ڈرانے دھمکانے سے نہیں چلتے، بلکہ احساس، نرمی اور سچائی سے جیتے جاتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ اس سچی محبت کو مکمل طور پر اپنا لیا تھا، اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت جیت تھی۔